said that you need to take permission. Yeah. Now started. Yeah. Hey. It started. So welcome everyone, and we both are here to talk about how did we land up in consciousness, and coming from extremely different backgrounds and the so-called very niche cliche backgrounds. या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या सीए बन जाओ, इससे तो कम बनना ही मत कभी प्लीज. सो वी बोथ हैव डन दैट, बिन देयर, एंड जॉब्स भी कर लिए काफी साल, है ना विनय जी? True. 18 years, 18 plus years. 18 years. I have 9 years. Okay, so half of that. How does this get better? So, not that we're not doing jobs anymore, but the way we look at our jobs, और जिस तरीके से अब हम involved हैं अपनी जिंदगी के साथ, that has, I think, turned over 360 degrees. I would say मेरा तो अब same world नहीं रहा, मैं कोई और अर्थ पे पहुंच चुकी हूँ. So for me, being a doctor on a different earth planet, and I think Vinay ji will also wow. Yes, it is wow. और अभी आप लोग देख जो थे पहले से देख रहे हो. So I'm a doctor. I'm an MD, allopathy physician, MBBS, MD wala. Because a lot of people ask me. That's the first question I get. Ayurvedi, homeopathy wali ho kya? I'm like, yeah, allopathy physician, because none of the allopathy physician will ever enter into energy healing. They are like, this is a big scam. You should never go there. This is not based on scientific evidence and blah. Yeah, but still, yeah. Right, Payal? No conclusions. Well, still here, and my life has become way more phenomenal than it was before. And we have with us Mr. Vinay Vilas Pisat. Did I say that right? Yeah. Yes. So he started his career with completing his finances as a CA and CA 2B level also, and then he was with banks, and even was an ex-vice president in one of the reputed banks. And now, all of you who know him, or all of you who don't know him or are watching later, he's a world-renowned. When I say world-renowned, he's actually a world-renowned sound frequency healer. He's a Reiki grandmaster. People have come from Dubai and Sharjah and Singapore to actually take his sessions of sound frequency. I have been lucky enough to myself experience sound frequency sessions, sound healing sessions thrice. And they were out of this world experiences. Not that I wanted to heal something or anything. It was just I just went for an experience, and it was phenomenal. So whoever doesn't yet know what it means, what it is, and would like to experience, please go to him. He's the best in the field. And he's also an Access Consciousness facilitator, bars facilitator, and practitioner, and trained many people in this field. And maybe sort of way करती हूँ, but minus the sound frequency part and the Reiki part. He's a Reiki grandmaster as well. And बाकी अपनी कहानी वो बताएंगे. मेरा काम खाली introduce करना है. So for myself also, I'll introduce little bit थोड़ा सा. I am a mom of 2 kids. आपने देखा ही होगा भी starting में. And I have my lovely husband here, Dr. Anurag, also on the screen. Anurag, say hi. Yeah. So, hi. And hi. Hi, Dr. Charu. So glad you're here. Hi. Yeah, hi. Me too. And I'm in the thing of a clinical hypnotherapy. I'm a tarot card reader, shamanic healer, access bar facilitator, mindfulness coach, meditation. I do guided meditations, yeah. So, okay, jane do. So now let's go to what Vinay ji has to share, and he has so many miraculous stories. हम लोग कल परसों बात कर रहे थे, and we were excited, क्या बताएंगे इतना है बताने के लिए कि आधा घंटा कम है. So yeah, I asked her कितना time है. Go on. We have 23 more minutes to go. Wonderful. Over to you. It's 7/7, guys, and universe is with us. So first of all, thanks Dr. Arpita, Dr. Anurag for supporting her, and I know you both are co-creating many things. So all the best, buddies.
And Arpita, thanks really for this call and for inviting me, because this is something I believe is the need of the hour. And many people have misconceptions about consciousness, and such kind of calls really help to create that awareness. At least people know there is something which is not difficult, first of all. So if you ask me, I see access consciousness as a very simple energy modality, and which is not something which is rigid. It encompasses everything, it empowers you, and you shift as you use it. So just to give my story, so I am a chartered accountant by profession. Since 2005, started working with different banks within India, outside India, reached to different positions of hierarchy in corporate sector, and I am blessed. I am grateful for my qualification. However, somewhere I wanted to use my passion as well. So I had an interest in energy healing. So I completed my Reiki Grandmaster. And then it was I have done for out of curiosity. ये सच में कुछ वर्क होता है कि ऐसा ही है. And when I realized that there is some energy within my hands, and then out of curiosity I started developing it. I started working with sound frequencies, and that was something was a completely game changer in my life, because when I have seen that sound can shift anything, and then I've started, okay, can I take it to my theta state? Can I take it? Can I help with this technique to society, to the people? And so we will have a separate call for sound frequency because it's really awesome. However, when it came to access consciousness, like I was in a dilemma, right? Whether to continue with my job because I was doing well, getting promotions, getting appreciations, everything was completely okay. But somewhere, and by that time, when I have done my access consciousness, I used to facilitate, okay, the consciousness to the people. And then I said, let's ask to myself what I want to do with my life. I said, what should I do in my remaining life? Okay, what I would like to do in my remaining life? So which will be the fun for me? I should enjoy it. It should not be only money, should not be only concern, but I should enjoy it personally at the end of the day. And when that question strike in my mind, one fine day, because I by that time I already facilitated many sessions, like I am facilitating access bar sessions from last 5 to 6 years. And with that, that question I asked to myself, what should I do? What should I choose for rest of my life? And then that question came, and you will not believe that it was just that spark. And I have decided, okay, I should start. I should go with my calling. I should go with my inner calling. I quit the job. It's not necessary for you to quit the job. You can use the consciousness. But yes, I had some different passion and purpose, and it was very smooth. A good support from my family. They have accepted it. Many people told me, okay, you are making this decision in hurry. So I said, no, it's well thought decision. And see, believe me, अभी भी many बोलते people, होंगे विनय जी, अभी भी बोलते होंगे. huh? I'm sure. अभी भी बोलते होंगे. True. So, see, for me, the consciousness, if you go purely, by, like there are many people जो यहाँ पे नए हैं जिनको consciousness के बारे में पता ही नहीं ये access consciousness है क्या, which is the main agenda of this call. So, see, if you go purely from a scientific way, it is a quality, it is a state of your awareness. Okay. And if you go still scientifically, it is only the non-dualistic way, it is learning related to the cognitive way. But this consciousness, when we talk about access consciousness, it is about a pure consciousness. Okay. Like Ashtavakra Gita में राजा जनक का एक डायलॉग है, where he says that I am, मैं अंतरिक्ष में हूं, एंड ये जो दुनिया दिख रही है ये मुझे एक घड़े से भी छोटी लग रही है. I am infinite.
और अष्टावक्र गीता में वो यूज किया था, एंड समवेयर मुझे लगा कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट, एक्सेस के जब मैं टूल्स देखता हूँ, एक्सेस का जो स्टेटमेंट देखता हूँ, इट इज लाइक इट्स शिफ्टिंग योर एनर्जी इमीडिएटली। देखो, लाइफ में इट इज फॉर द न्यू पीपल जो यहाँ पे है या ये जो कॉल को बाद में देखेंगे कि एक्सेस कॉन्शियसनेस करना क्यों चाहिए। इट इज नॉट लाइक अनदर बज़वर्ड, इट इज नॉट लाइक अनदर थेरेपी और द मॉडलिटी, बिकॉज देर इज नो राइट रॉन्ग विच वी लर्न इन एक्सेस। बट मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट लोग इसको ट्राई करके देखें, बिकॉज इट माइट चेंज योर एंटायर लाइफ। आप इतना सेल्फ एम्पावर फील करोगे, एक तो आपका लोगों के ऊपर का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। जो हर छोटी चीज में हम लोगों को पूछते हैं, मैं ये लूं कि ये नहीं लूं, ये करूं कि ये नहीं करूं, है ना, जो पोलैरिटी है, जो ड्युअलिटी है, खुद के ऊपर का जो भरोसा है वही निकल जाता है। और पता भी नहीं कि जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं ये सच में हमारी लाइफ है, और सालों निकल जाते हैं। जैसे मैंने देखा कॉर्पोरेट लाइफ में मेरे 18 साल निकल गए। यस, आई हैव अचीव्ड समथिंग, बट देन वो क्वेश्चन आया, एम आई परमानेंट हियर? अगर इसमें प्लैनेट में हूं तो क्या मैं 100 साल जीने वाला हूँ, 1000 साल जीने वाला हूँ, 2000 साल जीने वाला हूँ? तो क्वेश्चन आया नहीं, फिर मैं कैसे जीऊं? व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ माई थॉट? और कहीं ना कहीं पे एक्सेस के जो टूल्स थे मुझे बहुत ही इजी लगे। इट्स एज इजी एज ब्रीदिंग। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इट आपको सिर्फ आपका कॉन्शियसनेस को अप्लाई करना है, आपका अवेयरनेस बढ़ जाता है। और आई एम अ बिग फैन ऑफ द बार्स प्रोसेस, क्योंकि जब आप बार्स रन करते हो, आपको जो भी चीज लिमिट करती है वो निकल जाती है, और आपको रियल जो आप हो वो कहीं ना कहीं पे आपका जो आप रियल हो उसको आप मिलते हो। एंड देन यू फील ओके, शायद आपके पास उतना कुछ नहीं रहेगा मटेरियल वे में, बट आपके पास कहीं ना कहीं पे वो हौसला आ जाता है, आई कैन क्रिएट एनीथिंग, आई कैन डू Vinay ji, can I just एनीथिंग। stop and can I just interfere and just add यस a यस few प्लीज things? एक्सेस बार्स जो अभी विनय जी डिस्क्राइब कर रहे थे, कुछ नहीं होता, वो कुछ हेड के ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं, और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स नहीं होते, कुछ एनर्जेटिक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग अपने फिंगर्स से जो है हल्के से टच करते हैं और उनके थ्रू एनर्जी रन करती है। और आप इसको कहते हैं बार्स रन करवाना या बार्स सेशन लेना। So this is what he's describing. This is just a one-day class called Access Bars, where you can actually learn the whole process of giving bars to someone, and you become an internationally certified Access Bars practitioner प्रैक्टिशनर। in just one day. And this is a tool for your whole life. पूरी जिंदगी आपके लिए है, मतलब कोई उसका रिविजिटिंग और उसको रिफ्रेश करो और आगे स्टेप्स करो, ऐसा कुछ नहीं, बस एक दिन में हो जाता है। So sorry, I just wanted to No, no, it's add in really good people because who don't yes, know. because it is for the people जिनको एक्सेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। करेक्ट। एंड यस डॉक्टर अर्पिता, यू आर राइट। एक बार हम लोग सीख लेते हैं तो इसको पूरी लाइफ हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इट इज लाइक व्हेन यू स्टार्ट योर डे, यू कैन जस्ट आस्क द क्वेश्चन, व्हाट मोर कैन आई क्रिएट टुडे, व्हाट मैजिक यूनिवर्स कैन शो टू मी टुडे। सो इट्स लाइक योर कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। और बहुत मुझे एक चीज इस पूरे प्रोसेस में या एक्सेस बार्स में अच्छी लगी कि आप हमेशा पॉसिबिलिटी में रहते हो। ओके, और व्हेन आई कनेक्ट इट टू माय साउंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग नॉलेज, कि आप जब भी लोअर वाइब्रेशंस पे रहते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, आप में अगर एंगर है, आप फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज बहुत बार होता है अपने लाइफ में एक तो कोई विलन होता है, ओके, जो हम लोग ब्लेम करते हैं, भाई इसके वजह से ये सब हुआ है। करेक्ट डॉक्टर पायल? बहुत लोगों की लाइफ में भी हस्बैंड या वाइफ भी विलेन होते हैं, माँ बाप विलेन होते हैं, सास ससुर विलेन होते हैं। नहीं, कोई ना कोई तो होता ही होता है। लेकिन उसमें होता क्या पता है, अनफॉर्चुनेटली आपका जो शिफ्ट करने का जो वक्त होता है ना, बिकॉज देर इज ऑलवेज यूनिवर्स गिव्स यू दी अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट। हर एक प्रॉब्लम के पीछे एक वरदान होता है। ओके, लेकिन उसको देखने के लिए आपकी जो कैपेसिटी है वो ओपन होनी चाहिए। सो एनी प्रॉब्लम व्हेन यू गेट impacted by the problem, you are done, you are finished there, because you are under the control of that problem. But when you say, what is the blessing behind this problem, what can I do differently, मैं ऐसा क्या अलग करूं या अलग तरह से देखूं, या इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, the entire game will change and you will see some bigger blessing waiting for you there.
Right, Anurag? इतना Yes. easy. Yes, true. So, see, लोगों को है ना, like we will go to the question and answer subsequently, but this is so fascinating and this is so simple कि आप आपके like आप कॉफी बनाने से लेके ओके आप करोड़ रुपीस का डील करने तक यू कैन यूज दिस थिंग्स. सो लेट मी ऑल्सो टेल यू, जैसे डॉक्टर अर्पिता ने बताया कि इसमें होता क्या है. सी, आपको पता है कि जब आपका मोबाइल है वो खराब होता है, आप क्या करते हो? ओके आप उसका मेमोरी कार्ड निकालते हो, सिम कार्ड निकालते हो और दूसरे मोबाइल में डाल देते हो, करेक्ट? नाउ यू इमेजिन, एंड व्हाट इफ यू डोंट क्लीन दैट डेटा कार्ड? if you don't clean, okay, what will happen to it? So you carry forward the same viruses, you carry forward the same drama trauma, the same videos, the same pictures of 10 years, 20 years, and your memory is cluttered, there is no space at all. And what if I tell you that similar same thing is happening in your life? If you are 20 years old, you are carrying the baggage, you are carrying the programming, you are carrying the patterns from your 20 years से आप जो भी सीखा हुआ है, गलत सही जो भी पता नहीं है, बट वो आप कैरी कर रहे हो. और आपके जितने भी फ्यूचर के डिसीजन से दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड कहीं ना कहीं पे, ये जो प्रोग्राम से उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन हम सब लोग गए हैं माउंटेन पे, ट्रेकिंग करने गए हैं, और इनमें से कुछ लोग हैं जिनके बैग में 20-20 किलो 30-30 किलो के स्टोन्स है और 50 किलो के स्टोन है, किसी के पास तो 150 किलो के स्टोन है. विल दे एंजॉय द ट्रेक? अ सिंपल क्वेश्चन. अगर आप पास्ट का, द पेन ऑफ द पास्ट इज प्रोग्राम इन योर सेल्स, इन योर बॉडी, इन योर माइंड, द मोमेंट. और कितना अच्छा होगा डॉक्टर अर्पिता, आपने एक्सपीरियंस किया है, पायल ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, डॉक्टर चारुशीला है, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने बार्स, ऑलरेडी दे आर बार्स प्रैक्टिशनर एंड दे विल एग्री टू इट. द मोमेंट, व्हाट इफ आपको अगर पता चले कि ये जो बैगेज है वो मैं क्लीन कर सकता हूं, आई हैव अ चॉइस, मुझे चॉइस है, ये सब पत्थर है जो अनवांटेड चीजें है मैं रख सकता हूं, एंड आई कैन स्टार्ट not only a year, not only a month, not only a day, but another breath. कई दिन मेडिटेशन नहीं करना पड़ेगा, कई दिन बैठ के मेडिटेशन करो, कई दिन बैठ के अपना लिखो मेरे साथ क्या गलत हुआ और फॉरगिवनेस करो, ये सब नहीं करना पड़ेगा. Not required, Dr. Rafi. It's so simple. That's why, see, that's why I'm saying it's really simple. See, I have done NLP, I have done past life. मैं नहीं बोल रहा हूँ, I'm not comparing, because this is not a comparison. दिस इज अ सिंपल अवेयरनेस कि मैं ऐसी क्या चीज है जो मैं बहुत सहजता से कर सकता हूं. एक्सेस का मंत्र ही है, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईच जॉय एंड ग्लोरी. अगर मैं मेरा लाइफ जो मैं अभी जी रहा हूं, बिकॉज हम सबको पता है कि अगर आप पास में जी रहे हो तो आप डिप्रेशन में जी रहे हो, अगर आप फ्यूचर में जी रहे हो तो आप एंजाइटी में जी रहे हो. और सिर्फ बुक्स पढ़ के लाइक पावर ऑफ नाउ लोग नहीं रहते, क्योंकि ये जो थॉट का जो सब जगह पे जो इतना भरे थॉट्स का जो पैटर्न है, जो हैबिट है, वो किसी के बोलने से, कोई रिजोल्यूशन लेने से नहीं जाती है. तो ऐसी क्या चीज है जो बहुत इजीली हमें प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आए? ऐसी क्या चीज है जो सालों का जो भी गुस्सा है, सालों का जो भी प्रोग्रामिंग है वो निकाल पाए? और इसीलिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि एटलीस्ट एक बार अपने बार्स रन करके देखो, एंड जो स्पेस क्रिएट होती है उसको महसूस करो, बिकॉज यही स्पेस है जो क्रिएटिव है, जिसमें आप लाइफ को एक अलग अलग डायमेंशन पे लेके जा सकते हो. वही लाइफ है, वही लोग है, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो ना कि डॉक्टर अर्पिता स्टार्टिंग में बोल रही थी मुझे दुनिया अलग लगने लगी थी बार्स करने के बाद, विच इज अ फैक्ट. और ये बहुत देखो, इट्स वेरी सिंपल, राइट? इसके लिए आपको कुछ जैसे बोला कि आपको हिमालय पे जाके 10 साल मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, बट एक बेनिफिट है, जैसे डॉक्टर जेफरी फेनिन ने दिखाया हुआ है एक्सेस बार्स को एक्सप्लेन करते वक्त साइंटिफिकली, कि जब आप किसी के बार्स रन करते हो या खुद के बार्स रन करते हो, आपके जो ब्रेन में डेविएशंस है वो रिमूव हो जाते हैं. जो लोग 10 साल 12 साल मेडिटेशन कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, उनका जो ब्रेन का जो पैटर्न होता है, उनके ब्रेन में जो क्लीन स्पेस होता है, क्रिएटिव स्पेस होता है, वही स्पेस आपका बार्स लेने से क्रिएट होता है. अच्छा है. मैं इस रिसर्च का लिंक डाल दूंगी आफ्टर वी फिनिश द कॉल. या प्लीज इनफैक्ट सी, आज वर्ल्ड में
3 लाख से ज्यादा बार्स प्रैक्टिशनर्स है एंड दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. 10,000 प्लस फैसिलिटेटर्स है. ओके और देखो एक सिंपल चीज है, लाइफ अगर 1000 साल रहती ना मैं समझ सकता था. हमारा टिक टिक ऑलरेडी चालू हो चुका था. वी डोंट नो 10 साल जीने वाले हैं. ओके 10 महीने जीने वाले हैं या 10 मिनट जीने वाले हैं. सो ऐसा अगर कुछ मिले जिससे लाइफ जी आप लाइक एक्सेस का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है. व्हाट इफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू हैव फन. आज आप सिर्फ खिड़की से बाहर देखो, आपके गाड़ी से बाहर देखो, कितने लोगों लाइक दे आर जस्ट रशिंग टू अर्न मनी. पता ही नहीं चल रहा है बिकॉज लोगों ने सिखाया हुआ है. लोगों ने कुछ सिखाया हुआ है, मुझे वैसा ही फॉलो करना है. दे आर फॉलोइंग सम Can I add स्ट्रक्चर. यस प्लीज. Can I add that? कि आपने जो बोला ना कि what is the purpose of life is to have fun. Now when I actually see around हम लोग के जो भी बच्चे हैं, especially toddlers, less than 7 years of age, they are actually practicing consciousness day in and day out. क्योंकि उनके लिए तो भैया life is supposed to be fun. भाई क्या करना है आज? मुझे खिलौनों से खेलना है. क्या करना है? नए खिलौने ला दो, खेलना है. फिर क्या करना है? सो जाओ, मुझे खेलना है. So they are like they know all the time and they're just present in the moment. The They are consciousness creating with सीखने ease. का They बच्चे are से creating सीखना with चाहिए. ease. और Correct? उनके पास हर फैसिलिटी के लिए पैसे भी आ जाते हैं and they're not going for any jobs. कोई उनको करियर नहीं बनाना, पर पैसे उनके पास आ जाते हैं. पता है डॉक्टर अर्पिता लेकिन ये क्यों होता है? हाँ. देर इज नो हिस्ट्री, देर इज नो प्रोग्रामिंग. उनके पास जजमेंट Yes. नहीं है. उनके पास किसी को लेबल नहीं किया हुआ है ये अच्छा है ये बुरा है. ओके सो दे आर प्योर. एंड व्हाट इफ यू गेट, अगर एक ऐसी प्रोसेस मिल जाए कि आप माइंड से और बॉडी से भी, हाँ बहुत जरूरी है, माइंड से और बॉडी से भी प्योर हो जाओ. क्योंकि देखो मैंने जितना देखा हुआ है ना, लाइक मैंने किलियन फोटोग्राफी देखी है, आई एम वर्किंग विद ओरा एंड ऑल, कि जो भी आपके साथ होने वाला है कहीं ना कहीं पे आपके ओरा में होता है. ओके और मुझे बार्स और एक्सेस का प्रोसेस इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि वो ओरा में से आपके बॉडी में जाने से पहले ही आप रिमूव कर सकते हो. एंड उसके बाद यू कैन लिटरली क्रिएट शील्ड अराउंड यू. आपके पास वो चॉइस होता है, कुछ भी आने से पहले आप पूछते हो should I take this, whether it will create my life or whether it will decay my life. Okay so आपने बहुत अच्छा या प्लीज. अमेजिंग एग्जाम्पल्स. मैं बहुत लोग कमेंट भी डाल रहे हैं. आपने इतनी खूबसूरती से बताया कि मोबाइल में मेमोरी कार्ड फुल हो गया तो क्या करेंगे. जैसे मेरी अभी लैपटॉप की मेमोरी फुल हो गई थी तो मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी. एंड नाउ आई शुड एक्चुअली गेट माय बार्स रन और लैपटॉप के भी बार्स रन. सो टू क्रिएट मोर स्पेस एंड awesome. इतने मतलब आसानी से ना किसी ने आज तक एक्चुअली नहीं समझाया. नहीं इनफैक्ट अर्पिता मैं उसको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ क्योंकि मेरे पास काफी लोग है ना, काफी ऐसे लोग जाते हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं. उनको इस लाइफ का कुछ पढ़ा ही नहीं होता है. उनको तो अच्छा. आत्मा का बाद में क्या होगा उसकी भी फिक्र होती है. तो मोक्ष, उनको बोलता हूँ मोक्ष. तो उनको मैं बोलता हूँ भाई एक्सेस आपको उधर भी यूजफुल होगा. आपका ये लोग तो अच्छा हो रहा है, परलोक भी अच्छा होगा. मैं बोलता हूँ रीजन बता रहा हूँ आपको. मैं बता रहा हूँ देखो आप जो भी कैरी कर रहे हो ठीक है, आपके साथ जो भी ड्रामा ट्रॉमा हुआ रहेगा, बहुत लोगों ने आपको फंसाया रहेगा, आपको प्रमोशन में आपको डिच किया रहेगा, जो भी हुआ रहेगा आपके लाइफ में, या आपको सो कॉल्ड आपके स्पाउस है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया रहेगा, आपके इन लॉज ने नहीं सपोर्ट किया रहेगा, बहुत कुछ हिंदी पिक्चर जैसा हुआ रहेगा आपके लाइफ में सपोज. ओके नाउ यू हैव अ चॉइस. नाउ यू हैव अ चॉइस टू अंडन इट. यूज द टूल्स, रन योर बार्स और आपकी जो मेमोरी है वो क्लियर करो. और आप सोचो उसके बाद ऐसे भी टूल्स है कि एक बार क्लीनिंग होने के बाद आप फिर से वो कचरा आपके अंदर नहीं आएगा. वो फिर से प्रोग्रामिंग आप अंदर आने नहीं दोगे क्योंकि जितने बार आप एक्सेस को प्रैक्टिस कर रहे हो, बार्स को प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर इंप्रूविंग योर अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस. सेकेंडली मतलब अगले जन्म में हम लेके नहीं जाएंगे वो कचरा. सुनो ना, तो अगर आपका अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, आप सोचो ना कि आप क्या कर रहे हो. आप तो प्योर हो गए, डेली आप बार्स रन कर रहे हो, आप में अवेयरनेस भी है कि ये अगर मेरे अंदर आ रहा है तो इसको मैं लू कि नहीं लू. वो रो के बोल रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, बट व्हाट शुड बी माय रिस्पॉन्स? यूज द टूल्स. what should I like respond differently? Okay, what can I do to be more present in this particular moment? मैं अलग तरह से इसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूं क्या? ठीक है. और होगा क्या कि एक तो आप क्लीन हो गए हो माइंड और बॉडी का, और आप डेली क्लीन कर रहे हो खुद को. इट्स एज इजी.
ठीक है, हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, मैं तो इंसिस्ट करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने इंसिस्ट किया था कि कम विथ योर हस्बैंड, एटलीस्ट आपके क्लैशेस कम हो जाएंगे, आप एक पेज पे आ जाओगे, आपके आपके जो बेटे हैं उनके साथ आ जाओ, यू विल बी लेस वरीड अबाउट देयर फ्यूचर बिकॉज दे विल बिकम कॉन्शियस। अभी होगा क्या कि आपका माइंड और बॉडी क्लीन हो चुका है, नाउ यू इमेजिन आपका नेक्स्ट 2 सेकंड में लास्ट ब्रेथ है, आपको टाटा बाय बाय बोलना है प्लेनेट को, आपकी कंडीशन क्या रहेगी? यू आर क्लीन, ऑलरेडी क्लीन। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग इतना सारा ड्रामा ट्रॉमा प्रोग्रामिंग ब्लेमिंग, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन इसको फॉरगिव नहीं करूंगा, होता है बहुत बार। एक विलन जो होता है, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं पे नेक्स्ट लाइफ में भी वो सब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। बट इफ यू आर क्लियर, ओके, अगर आप माइंड और बॉडी से क्लीन हो तो आप कैरी क्या कर रहे हो? यू आर ओनली कैरिंग द लर्निंग्स एंड अवेयरनेस। पायल कह रही है मैंने बहुत बार रन कर लिया, मैं अगली लाइफ में कुछ नहीं लेके जा रही भाई, कुछ नहीं लेके जाऊंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो विनय जी, इफ आई आस्क यू कि कोई एक टूल का आप एग्जांपल दो मुझे कि जो आपने इन एंड आउट, डे इन एंड आउट यूज करते हो और जो आपको बहुत पसंद है, एंड आपके लाइफ में वो कैसे चेंज ला रहा है, ओके ओके, सो कौन एक सा होगा? बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है, हु डज दिस बिलोंग्स टू। ओके, हु डज दिस बिलोंग्स टू, रिटर्न इट टू द सोर्स विद कॉन्शियसनेस अटैच। मैं सिंपल लाइक मेरे यहाँ पे बहुत अलग अलग लैंग्वेज के लोग आते हैं, तो मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा क्योंकि बेनिफिट होगा सब लोगों के लिए। ये किसका है, ये जिस किसका भी है, मैं उसको रिटर्न करता हूं। अभी सुनो, ट्विस्ट तो आगे है, इज दिस माइन? क्योंकि बुरे विलन हमेशा सामने वाले नहीं होते हैं, इधर भी हो सकता है, वो निगेटिविटी हमेशा बाजू वाले नहीं लेके आएंगे, ठीक है, ये इधर से भी हो सकती है। सो आस्क द क्वेश्चन, इज दिस माइन? क्या ये मेरा है? एक बात बोलूं, एक या बात बोलूं, मैं तो ना पहले पहले मुझे जब नया नया पता चला था तो मुझे लगता था कि मेरे पड़ोसी बहुत खराब है, ये मेरे नीचे वाले बहुत खराब है, ये मेरे ऊपर वाले बहुत खराब है। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि आई एम नॉट ओनली अवेयर ऑफ माय पड़ोसीज थॉट्स, आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ पीपल इन 8,000 किलोमीटर वाओ, रेडियस अराउंड मी। So when I say 8,000 kilometers, it's almost the entire earth. If you allow yourself, आप उतने लोगों के थॉट्स सुन सकते हो, समझ सकते हो। एंड मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आज का ही, अभी का। तो 1 घंटे पहले कॉल के, सच अ हैप्पी जोन, एकदम हैप्पी हैप्पी, और बड़ा मजा आ रहा था, मेरी लाइफ क्या मस्त चल रही है, मैंने कथक का वीडियो डाला है, सब देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये वो, मेरा कॉल होने वाला है, एंड और आधे ही घंटे पहले एकदम से ना मुझे ऐसे फील होने लगा कि मेरी लाइफ में ना जो जो चल रहा है सब बकवास है, आई एम जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड विद माय लाइफ। मैं कहा यार थोड़ा पानी पी लेती हूँ, क्या चल रहा है, या मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों ऐसे क्यों हो गया मेरे। एंड देन आई सडनली रियलाइज कि हमने डिस्कस भी किया था कि रियली इज दिस माइन, हु डज दिस बिलोंग टू यार, ये या किसका है। एंड then I looked at the time, it was 6:30 p.m. and I realized, oh, so many people would be coming back from office frustrated, in traffic, stuck, कि आज का दिन तो बेकार गया, आज मेरे साथ ये बुरा हो गया, घर जाके तो मैं इस पे गुस्सा निकालूंगा, वो होगा ये होगा। And I was like, oh, who am I aware of? भैया return it back, जिसका है ले लो वापस, जिसका है। And awesome. within seconds I was back to my zone. I was back to my zone. सी अर्पिता, So होता क्या है पता है, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपको आपके नए मोबाइल का फंक्शनिंग पता होता है, आपके घर पे जो टीवी है, फ्रिज है, उसका पूरा मैनुअल आपको पता होता है, आप जो भी नए गैजेट्स है सबका फंक्शनिंग पता होता है। बट ये जो सिस्टम है ना, इसको एक बार समझ लो, सिर्फ लाइफ आसान होगा। ओके, ये जो बोल रही है डॉक्टर अर्पिता कि किसी दूसरे के थॉट, वी आर लाइक सो साइकिक कि 98% थॉट्स अपने होते ही नहीं है। अगर आप किसी गुस्से वाले इंसान के सिर्फ बाजू में भी बैठो ना, आपका जो एमबीपीएस है ना घर पे, अभी 100 एमबीपीएस है ना, उससे भी कई गुना ज्यादा। ओके, इट्स सो फास्ट। हम लोग किसी का जो थॉट प्रोसेस है, किसी का बिलीफ है, वो इमोशन से हम इमीडिएटली कॉपी कर लेते हैं। और होता क्या है, अगर वो कॉपी करे, लाइक डॉक्टर अर्पिता, आई थिंक अगर हम लोग ने ये क्लास ये कंटिन्यू किया कॉल यहाँ पे, काफी लोगों का हम लोग एक सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। हम पूरा Right, पाठ पायल? सिखा देंगे, इंट्रो क्लास कर देंगे आज ही, और फिर पैसे मांगेंगे, तुम सबसे पैसे मांगेंगे।
नो, सो बेसिकली हम लोग काफी लोगों के थॉट फीलिंग्स इमोशंस कॉपी कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. एंड व्हाट शी वाज सेइंग, शायद किसी की एनर्जी, किसी के थॉट प्रोसेस अगर हम लोग कॉपी भी करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. एंड पीपल इवन स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन. करेक्ट, कि मुझे डिप्रेस फील हो रहा है, मुझे अलग फील हो रहा है, दे स्टार्ट विजिटिंग डॉक्टर्स. एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं होती है. आजकल डिप्रेशन का अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है. हर दूसरे बंदे को यही लगता है मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे सुसाइडल Yes. थॉट्स आ रहे हैं. ट्रू ट्रू. सो देखो, एक सिंपल चीज है, जो भी यहाँ पे लोग नए हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एनर्जेटिक मॉडलिटी है. ओके, और इसको यूज करने से होगा क्या? ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप खुश रहोगे, आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, आपको ब्लेम करने वाला कोई भी आदमी नहीं रहेगा. और शायद जो लोग आपके लाइफ में आपके फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करते हैं, वो बहुत इजी से आप आसानी से आपसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि टेबल टेनिस खेलने के लिए उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि आप तो अवेयर हो चुके हो. ठीक है, सो दे विल मेक द वे आउट. ओके, सो जैसे डॉक्टर अर्पिता ने पूछा कि बेस्ट टूल जो मुझे लग रहा है, लाइक मेरा फेवरेट टूल है, हु डज दिस बिलोंग्स टू, रिटर्न इट टू द सोर्स विद कॉन्शियसनेस अटैच. इज दिस माइन? अगर ये मैंने क्रिएट किया है तो मैं अनक्रिएट, डिलीट, डिस्ट्रॉय कर रहा हूं. ओके, और ये वही अवेयरनेस है, क्योंकि जो डॉक्टर अर्पिता बोल रही है कि मुझे सडनली गुस्सा आया, मुझे गुस्सा नहीं होना था लेकिन सडनली गुस्सा आया, यू टेक अ पॉज, इज दिस माइन या हु डज दिस बिलोंग्स टू, और आपको मैजिकली फील होगा कि आप बहुत शांत खुद को महसूस करोगे और यू विल रिएक्ट डिफरेंटली टू इट. लेकिन देखो, टूल्स एक जगह पे है, लेकिन आप जब बाहर सीखते हो, आपको जो वो इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप इतने एम्पावर हो जाते हो कि आप आपके घर के सबसे बड़े एक रिसोर्स बन जाते हो, क्योंकि खुद को भी आप संभाल पाते हो, आपके फैमिली को भी संभाल पाते हो. यू बिकम अ रियली हैंडी रेकनर जैसा बन जाते हो. अरे मुझे ये फील हो रहा है, प्लीज रन द बार्स, मुझे कुछ तो बताओ, रन द बार्स, रन द बार्स, बिकॉज आवर सिस्टम इज लाइक दैट. आप खुद को जितना एम्प्टी करोगे, ओके, यू बिकम मैजिक. विनय जी, अनुराग को बोलो मेरे आजकल बार रन नहीं करता, मैं बहुत बोलती हूँ उसको, फिर भी क्या Sure, फायदा हमारे definitely. दोनों 21 days, बात but I heard that आपने 21 days करने वाले थे. मैं कल सुना ऐसा कुछ कि आप 21 days का कुछ डिसाइड किए थे कि बार्स रन करने वाले हैं. कर रहे हैं, एक आध दिन नहीं होता है. Okay. It's highly. I think Dr. Charu is here. Advocate Suvarna is here. वो Can I तुम लोग can ने I भी प्रॉमिस can I किया था. just call विनय जी, हमारे पास 1.5 मिनट का समय बचा है. Oh, please, So please. after this, हाँ, हमारा ना जूम कॉल बंद हो जाएगा फिर. आई कांट हेल्प एनीबॉडी, सॉरी. हम फ्री जूम कॉल पे, हमारा 40 ही मिनट का है. So, if anybody likes to would like to ask any question, please quickly unmute yourself या chat पे जल्दी जल्दी type कर दो. वैसे हम दोनों कभी भी available है. I think most of you know all of both of us. हम ये वीडियो फेसबुक पे भी डालेंगे और अपने वहां पे डिस्क्रिप्शन हमारे फेसबुक का डालेंगे हम दोनों का. सो यू कैन रीच आउट डायरेक्टली टू अस आफ्टर दिस कॉल ऑल्सो. हम अपना नंबर भी डाल देंगे, अगर वो आपको इजी लगता है तो आप डायरेक्ट फोन भी कर सकते हो. Whatever works. If you have any questions, guys, please ask right now. We have less than a minute to go. No? Great. सब समझ में आ गया सबको. Awesome. So, would you like to turn on your videos so that I can actually see who all are there? What will Awesome. it take for you to show your beautiful faces? What is stopping you from receiving appreciation and getting noticed? Awesome. Thank you. Thank you for being here. Thank you all for being here. As Dr. Arpita Vinay said, ji, reach out to us. call. It was awesome. It was very, very wonderful. I did not think it will turn out this way, but मुझे भी बहुत मजा आया. मुझे कुछ नया सीखने को मिला. So thank you, Vinay ji. You always bring something new on the table. I am Thank you, really humbled to be here with you. Thank you, Dr. Arpita.